Good morning, students. How are you? Welcome back to my channel. Last time we have started the chapter thermodynamics and we have discussed first law of thermodynamics. Today we will discuss the applications of first law of thermodynamics. Before starting the applications, we should know the few terms, and one of them is specific heat. First term is specific heat. What do you mean by specific heat? And it is represented by C. For example, if you want to raise the temperature of m mass of substance by delta T degrees Celsius. If you want to increase the temperature of m mass by delta T, and heat required is delta Q. Delta Q is the heat required to raise temperature of mass m by delta T. Then this delta Q heat required is directly proportional to m. जितना मास ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा रिक्वायर्ड है. आपको 1 कप चाय बनानी है या 5 कप चाय बनानी है, इन 5 कप टी यू नीड मोर हीट. तो 1 कप के लिए यू नीड लेस हीट और 5 कप के लिए यू नीड मोर हीट. तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम. And heat required is directly proportional to temperature difference, increase in temperature. अगर आपको सपोज आपके पास गिवन मास है सब्सटेंस का, if you want to increase the temperature by 5 degrees Celsius, then you need less heat. If you want to increase the temperature by 20 degrees Celsius, then you need more heat. मतलब है जितना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करना है उतनी हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मास ऑफ द सब्सटेंस. डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर. एंड डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी. एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, where C is called specific heat. C is called specific heat. C is the constant of proportionality and called specific heat. And the value of C will become delta Q by M delta T. If M is 1, delta T is 1, then C is equal to delta Q. So here you can define specific heat. Specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by unit degree. Listen again. C is the specific heat is equal to amount of heat required to raise the temperature of unit mass of substance by unit degree. This is the specific heat. And unit for specific heat, delta Q heat. The unit of heat is suppose calorie. M mass, suppose mass will be in gram, gram minus 1. Temperature will be in Kelvin or Celsius, Celsius minus 1. You may write Kelvin, gram minus 1, Celsius minus 1. If you want to write in MK system, in SI system, delta Q, joule, mass, kilogram minus 1, temperature, Kelvin minus 1. In SI system, the unit of temperature is Kelvin. So these are the units of specific heat. Now we have two types of specific heat. Specific heat, first is molar specific heat. Molar specific heat, capital C. Molar specific heat is the
amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of substance by unit degree. This is called molar specific heat. ये डेफिनेशन आपको भूलनी नहीं है, माइंड में सेट रखनी है, तभी नेक्स्ट आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा. तो स्पेसिफिक हीट का मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस. बाई यूनिट डिग्री का मतलब बाई 1 डिग्री सेल्सियस. नाउ इज ग्राम स्पेसिफिक हीट. Gram specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. अगर 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, देन दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट. और 1 ग्राम का इंक्रीज करते हैं तो बन जाएगा ग्राम स्पेसिफिक हीट. सपोज 1 मोल इज इक्वल टू n ग्राम मान लो या m ग्राम मान लो, तो कैपिटल C क्या बन जाएगा n इंटू स्मॉल सी. स्मॉल सी होता है ग्राम स्पेसिफिक हीट और कैपिटल C होगा मोलर स्पेसिफिक हीट. तो कैपिटल C इज इक्वल टू n इंटू सी, वेयर n का मतलब है 1 मोल इज इक्वल टू n ग्राम. ये आ जाएगा. देन देर आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स. First is called specific heat of gas. Specific heat of a gas is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole or 1 gram of gas by 1 degree Celsius. अगर मोल गैस का कंसिडर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट. ग्राम कंसिडर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ग्राम स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ गैस, यहाँ आ जाएगा गैस, बाई 1 डिग्री सेल्सियस. तो स्पेसिफिक हीट 2 टाइप की हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड CP, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. Specific heat at constant pressure. And next is CV. This is called specific heat at constant volume. Specific heat at constant pressure is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram or 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant pressure. At constant pressure, this is called CP. CV की डेफिनेशन क्या है? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram or 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant volume. And one more term, gamma. Gamma is called CP by CV. जो स्पेसिफिक हीट की रेशियो है इसको बोलते हैं हम गामा. एंड गामा इज इक्वल टू CP upon CV. Clear? So this is all about specific heat. One more term we are using that is called heat capacity. Heat capacity is the heat capacity of a body of m mass. Heat capacity ऑफ ए बॉडी आ जाए या ऑफ सब्सटेंस आ जाए इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी और सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस. सपोज ये पेन है, मुझे इसकी हीट कैपेसिटी निकालनी है. इस पेन का टेम्परेचर मैं 1 डिग्री इंक्रीज कर दूं, जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ पेन. अगर 1 ग्राम ले लूं इसका पार्ट तो वो बन जाएगा स्पेसिफिक हीट, और मैं पूरी पेन को ले लूं
तो क्या बन जाएगा, हीट कैपेसिटी। अगर आपके पास सपोज वाटर है इन ए कंटेनर, पूरे वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो वो बन जाएगा हीट कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर। अगर आपको 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो वो बन जाएगा स्पेसिफिक हीट। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है, एम सी डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी इज 1 एंड डेल्टा क्यू विल बिकम हीट कैपेसिटी, ये इसका नाम है थर्मल कैपेसिटी। तो क्या बन जाएगा, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब 1 ग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस। अगर पूरी बॉडी का इंक्रीज करना है तो वो बन जाएगा हीट कैपेसिटी। और पूरी बॉडी का मास अगर m है तो मास इनटू स्पेसिफिक हीट, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मेयर्स फॉर्मूला, सॉरी, Cp minus Cv is equal to R. Prove that Cp minus Cv is equal to R, where Cp का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और R का मतलब है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। R इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट। Cp स्पेसिफिक हीट at constant pressure, Cv specific heat at constant volume। तो ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। सपोज कंसिडर दिस इज ए कंटेनर, सपोज container fitted with piston, it contains 1 mole of ideal gas. We will take 1 mole of ideal gas in container and volume is constant। और ये क्या है, constant वॉल्यूम है। अब मैंने क्या किया, हीट सप्लाई की dq। If you supply dq heat, then according to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw, and this is first law of thermodynamics। क्योंकि मुझे इसकी एप्लीकेशंस करनी है तो वी हैव टू यूज द फर्स्ट लॉ। तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो dq का मतलब क्या है, हीट गिवन टू सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, एक ही बात है। तो dq हीट दी मैंने इसको, तो इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस, सॉरी बाई dt। टेम्परेचर विल इंक्रीज बाई dt। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Cv इज द स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, व्हाट इज Cv, बस डेफिनेशन नहीं याद है तो फिर कुछ नहीं आना। Cv का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो हीट चाहिए मुझे Cv, और dt इंक्रीज करना है तो हीट चाहिए Cv dt। तो dq इज इक्वल टू Cv dt। ये जो मैंने लिखा है dq इज इक्वल टू Cv dt, अगर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन याद नहीं है तो ये लाइन समझ में नहीं आएगी, इसलिए स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन माइंड में याद रखनी है। तो Cv का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल गैस है, टेम्परेचर बढ़ाया मैंने 1 डिग्री सेल्सियस, तो हीट की रिक्वायरमेंट है Cv। मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ dt, तो हीट की रिक्वायरमेंट है Cv dt। सेकेंड, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो dw क्या होता है, pdv। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv विल बी 0, नो चेंज इन वॉल्यूम, देन dw विल बी 0, नो वर्क विल बी डन। पुट कर दो यहाँ पे,
डी क्यू क्या था, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू प्लस 0, तो डी यू विल बिकम इक्वल टू सी वी डी टी, इक्वेशन नंबर 1। तो डी यू इज इक्वल टू डी क्यू, इस केस में डी यू और डी क्यू क्या रहेंगे, सेम, एंड सी वी डी टी इज द आंसर। यू मे राइट दिस आल्सो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस 0, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू एंड दैट इज सी वी डी टी। तो ये हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं करूंगा एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ वी कीप द प्रेशर कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां मैंने लिया 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। टेम्परेचर मुझे रेज करना है सेम dt। अगर मुझे 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करना है तो हीट की रिक्वायरमेंट है Cp, और dt टेम्परेचर रेज करना है तो हीट की रिक्वायरमेंट है Cp dt। और ये हीट क्या होगी, सपोज dq डैश एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर dq डैश इज इक्वल टू du डैश प्लस dw डैश। दिस इज द फॉर्मूला। फर्स्ट तो लगा dq डैश इज इक्वल टू du डैश प्लस dw डैश। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 बाई 1। dq डैश की वैल्यू क्या बनेगी, Cp dt। टेम्परेचर यहाँ भी dt है, यहाँ भी dt है, तो मतलब du डैश इज इक्वल टू du बिल्कुल सेम है, एंड दैट इज Cv dt। यहाँ भी टेम्परेचर dt रेज हुआ, यहाँ भी dt रेज हुआ, तो इंटरनल एनर्जी दोनों की सेम होंगी। तो du इज इक्वल टू du डैश, और du की वैल्यू क्या लिखा रखी है मैंने, Cv dt। एंड लास्ट इज dw, एंड dw इज इक्वल टू pdv। dw की वैल्यू क्या आ जाएगी, pdv। वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, pdv। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पुट कर रहे हैं यहाँ पे dq डैश Cp dt, du डैश Cv dt प्लस pdv। Cp माइनस Cv इंटू dt इज इक्वल टू pdv। अब मुझे निकालना है pv की वैल्यू, pdv। वी नो सॉरी वी नो pv इज इक्वल टू क्या होता है, RT। pv इज इक्वल टू RT डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो pdv, R गैस कांस्टेंट है, R dt। तो pdv की वैल्यू क्या बन गई, R dt। यहाँ पुट कर दिया मैंने। तो Cp माइनस Cv इंटू dt इज इक्वल टू R dt। dt से dt कैंसिल, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज द मेयर्स फार्मूला। ये मैंने फाइंड आउट कर दिया मेयर्स फार्मूला। तो अब एक पॉइंट आता है यहाँ पे, वाई इज Cp मोर देन Cv। Cp जो है वो Cv से बड़ा क्यों है। यहाँ देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो मैंने हीट सप्लाई की वो सिर्फ टेम्परेचर को रेज कर रही है, नो वर्क विल बी डन। यहाँ पे जो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ वो टेम्परेचर को भी रेज करेगी और वर्क डन भी करेगी। यानी कि यहाँ हीट कर रही है सिर्फ एक ही काम, टेम्परेचर को बढ़ाने का। यहाँ हीट कर रही है 2 काम, टेम्परेचर बढ़ाने का, साथ में पिस्टन को ऊपर ले जाने का। सम वर्क विल बी डन। तो अगर मुझे सेम टेम्परेचर रेज करना है तो मतलब वी हैव टू सप्लाई मोर हीट, हैंस dq डैश इज मोर देन dq एंड हैंस Cp इज मोर देन Cv। तो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको मैं 100 रुपीज़ दूँ और आपको कहूँ आप शुगर खरीद के लाओ, एक तो शुगर खरीद के लाओ अपने साथ वाली शॉप पे, आप गए 100 रुपीज़ की शुगर खरीद के लाए। एक शुगर खरीद के लाओ 10 किलोमीटर दूर, तो आपको रिक्शा पे जाना पड़ेगा या स्कूटर पे जाना पड़ेगा या ऑटो पे जाना पड़ेगा, तो कुछ किराया भी तो खर्च होगा वहाँ तक जाने में। तो चीनी जो पड़ोस से ज़्यादा मिलेगी और वहाँ से कम मिलेगी। तो मतलब यहाँ 100 रुपीज़ दिए, सारा का सारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में काम ख़त्म हो गया। यहाँ 100 रुपीज़ दिए, कुछ पैसा तो लग गया आपका वहाँ तक पहुँचने में, 20 रुपीज़ खर्च हो गए, तो 80 रुपीज़ के इक्वलेंट ही आपको शुगर मिलेगी।
तो अगर आपको 100 रुपीज़ की शुगर चाहिए तो आपके पास 120 रुपीज़ होने चाहिए। तो 20 आपके जाएंगे वर्क डन में, 100 की आपने शुगर खरीद ली। तो सेम यहाँ पे है। तो डी क्यू हीट दी, सिर्फ टेम्परेचर रेज हुआ, वर्क डन है ही नहीं। यहाँ अगर डी क्यू हीट दोगे तो टेम्परेचर रेज होगा और वर्क डन भी होगा, तो ये डी क्यू हीट दोनों में डिवाइड हो जाएगी। अगर मुझे सेम टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो मुझे ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम heat supplied will increase the internal energy only, no work will be done. But at constant pressure, heat supply will increase the temperature, increase the internal energy and some work will be done. It means if you want to increase the temperature as at constant volume, we have to supply more heat. That is why Cp is more than Cv. तो ये क्वेश्चन आता है आपका, Why is Cp more than Cv? तो यहाँ पे एक ही काम किया टेम्परेचर रेज करने का, यहाँ मैंने 2 काम किए, टेम्परेचर भी रेज किया और साथ में सम वर्क विल बी डन। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इफ Cp एंड Cv आर इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि कैलोरीज में अगर ये Cp Cv है तो क्या बन जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई J, वेयर J इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। दिस J इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इफ 1 मोल की जगह मैं 1 ग्राम लूँ, फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू स्मॉल r। ये भी स्मॉल Cp है, ग्राम स्पेसिफिक हीट। दिस इज द ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस इज गैस कांस्टेंट स्मॉल r। यहाँ ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स है बिकॉज आई हैव कंसिडर 1 मोल ऑफ गैस। तो सिंपल सा आर्टिकल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो प्रूव करना है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r एंड दिस इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process, adiabatic process, isochoric process। इन प्रोसेस में मुझे लगाना है फर्स्ट लॉ लगाना है फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो du शुड बी 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw एंड dq इज इक्वल टू 0 प्लस dw एंड dq इज इक्वल टू dw। dq पॉजिटिव का मतलब हीट गिवन टू सब्सटेंस, हीट इज गिवन टू सिस्टम, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, एक ही बात है। और dw का मतलब वर्क विल बी डन बाय द गैस। मतलब ये हुआ, ये पिस्टन है, मैंने हीट सप्लाई की, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, दैट इज सेम, टेम्परेचर विल नॉट चेंज, लेकिन ये पिस्टन जो है वो ऊपर जाएगा। तो व्हेन यू सप्लाई द हीट वर्क इज डन बाय द गैस, तो dq इज इक्वल टू dw। तो जो हीट सप्लाई की मैंने वो सारे की सारी वर्क डन में कन्वर्ट होगी एट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन हीट विल बी 0, नो चेंज इन हीट, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगी। तो dq का फॉर्मूला क्या बनेगा, du प्लस dw। तो 0 इज इक्वल टू du प्लस dw एंड dw इज इक्वल टू माइनस du। इफ एनी गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, अगर कोई गैस अपने आप एक्सपेंड हो रही है तो dw क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द गैस। मैंने हीट सप्लाई नहीं की और ये पिस्टन अपने आप क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, तो वर्क इज डन बाय द गैस, तो टेम्परेचर क्या होगा इसका, डाउन हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज। अगर मैं माइनस dw कर दूं तो बन जाएगा du,
माइनस का मतलब वर्क डन ऑन द गैस। अगर मैं इस पिस्टन को कंप्रेस करूंगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया साइकिल का पंप है, जब मैं उसको बार बार कंप्रेस कर रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो वर्क डन ऑन द गैस विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। मतलब यह हुआ, इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट विल एक्सचेंज, एक्सपेंशन मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज और कंप्रेशन मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज। कंप्रेशन का मतलब अगर कोई आपके पैर के ऊपर पैर रख दे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपका गुस्सा आ जाएगा आपको, तो कंप्रेशन से टेम्परेचर बढ़ेगा और एक्सपेंशन से टेम्परेचर कम होगा। थर्ड इज आइसोकोरिक और आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस। dq is equal to du plus dw and dw is equal to pdv, dw will be 0 and dq is equal to du। इन आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस अगर ये वॉल्यूम सेम है तो जो हीट मैं सप्लाई करूंगा वो सिर्फ क्या करेगी, टेम्परेचर रेज करेगी। तो हीट सप्लाइड विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ओनली। अगर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम और हीट इज गिवन टू सिस्टम, एक ही चीज है, दैट विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है इफ सिस्टम रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस। बहुत सारे चेंज के बाद अगर सिस्टम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। एंड इन साइक्लिक प्रोसेस नो चेंज इन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इट मीन इंटरनल एनर्जी विल नॉट चेंज। इन साइक्लिक प्रोसेस नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू को जीरो कर दिया, 0 plus dw and dq is equal to dw. In cyclic process, heat given to system will consume in only doing work. तो dq dw के इक्वल है and du will be 0 and this is called cyclic process. Next is there are two more process where we will discuss them on the basis of first law of thermodynamics. First is called melting process and second is called boiling process. So before discussing melting and boiling, one term I am using, that is latent heat. What do you mean by latent heat? Latent heat is the, latent होता है छिपा होना। Latent heat is the amount of heat required to change the state of 1 gram of substance from solid to liquid or from liquid to vapor। मतलब कि 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसकी स्टेट चेंज करनी है एंड द हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। तो कंडीशन क्या है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमें डिस्कस करना है मेल्टिंग प्रोसेस। तो मेल्टिंग में क्या होता है, व्हेन सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, जब सॉलिड मेल्ट होगा लिक्विड में, देन इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। सेकेंड, व्हेन सॉलिड विल मेल्ट इनटू लिक्विड, देन नो चेंज इन वॉल्यूम। तो सॉलिड से बन गया लिक्विड एंड प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग प्रोसेस। तो मुझे मेल्टिंग प्रोसेस में अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर सपोज एल लेटेंट हीट है तो लेटेंट हीट का मतलब है इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मेरे पास सब्सटेंस है m ग्राम, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी, m इंटू एल। डेल्टा क्यू विल बिकम m इंटू एल।
और टेम्परेचर क्या है इसमें, कांस्टेंट। मेल्टिंग प्रोसेस में टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। dW विल बिकम PdV, dV वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम विल बी जीरो ड्यूरिंग मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस में जो वॉल्यूम चेंज है दैट विल बी जीरो, तो dW विल बी जीरो। तो dQ की वैल्यू m इंटू एल, दैट इज du प्लस जीरो। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू एल। तो ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज। तो मेल्टिंग प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी एंड du इज इक्वल टू m इंटू एल। क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज बॉइलिंग प्रोसेस। तो बॉइलिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बॉयल, जब वाटर बॉयल होगा तो लिक्विड जो है दैट विल चेंज इनटू स्टीम, वेपर्स में चेंज होगा एट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बॉइलिंग प्रोसेस में टेम्परेचर एंड प्रेशर इज सेम। तो मुझे यहां निकालना है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। L is the latent heat of vaporization. Then amount of heat given that is equal to m into L. m है given mass of liquid, तो dQ की वैल्यू आ जाएगी m into L। ये आ गई L latent heat of vaporization। सेकेंड आता है V1, क्योंकि मैं जब बॉइलिंग प्रोसेस होगा तो लिक्विड से वेपर बनेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, और V2 क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और फाइनल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वेपर्स हो गई। तो dV क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। तो dW का फार्मूला PdV P इंटू V2 माइनस V1। तो हेयर वी हैव टू कैलकुलेट द du। du क्या होगा, dQ माइनस dW एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ml माइनस P इंटू V2 माइनस V1 एंड दिस इज द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इन केस ऑफ बॉइलिंग प्रोसेस। और बॉइलिंग प्रोसेस में जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है इट इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल पोटेंशियल की वजह से क्या हो रहा है, बॉइलिंग प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। एंड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एग्जाम में आने लायक है वो है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड वाई इज Cp मोर देन CV। वॉच दिस वीडियो लेक्चर 2-3 टाइम्स। इसमें रिटन प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए, वीडियो देखने से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन एंड यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशंस ऑफ लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट एंड देन अप्लाई द डेफिनेशंस इन योर आर्टिकल्स, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड डू प्रैक्टिस, राइट 2-3 टाइम्स ईच आर्टिकल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।